Now, good morning, students. Today, I am continue activity 2, that is question number 4. Check whether the following can be the angles of a triangle. Now, A part, that is 33 degree, 90 degree and 45 degree. The three angles be given. You have to check that these angles formed a triangle or not. तो ये हम कैसे चेक करेंगे ये आज मैम बताएंगे. अब हमें ये थ्री एंगल्स दिए. आपको पता है कि ट्रायंगल की शेप हमारी क्या है, ऐसे है. और इसमें ये तीन एंगल्स होते हैं जो हमें दे रखा है. जैसे एक 33 डिग्री दे रखा है, एक हमारा 90 डिग्री का दे रखा है और एक 45 डिग्री है. क्या ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा? इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों मेजरमेंट्स को प्लस कर देंगे. दैट इज 33 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. And we see what is the sum if we add these three. That is 5 plus 3, 8, then 4 plus 9, that is 13, 13 plus 3, that is 16. जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो हमारा कितना डिग्री आ रहा है? दैट इज 168 डिग्री आ रहा है. 5 plus 3 is 8, not 9. So our answer is 168 degree, not 169. So 168 degree आया, that is not as the sum of 180 डिग्री. इसका जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री नहीं आ रहा है. इट मीन्स द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. हमने कल आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाई थी. उसमें क्या बताया था? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, then only the triangle is possible. Now we check, we add these three angles, then our answer is 168. That is not equals to 180 degree. Then the triangle is not possible. इस ये वाला ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है. In this way we can check the angles of the triangle is given, then the triangle is possible or not. Now you see the B part, that is 110 degree, 45 degree and 25 degree. The three angles be given. Now you check that these three angles sum be equals to 180 डिग्री और नॉट. इसको हमें चेक करना है कि ये 180 डिग्री है या नहीं है. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को लिखेंगे. दैट इज 110 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री एंड वी एड ऑल द थ्री एंगल्स. तीनों को प्लस करने के बाद देखेंगे कि ये इसका सम 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है. नाउ वी एड 5 plus 5, 10 plus 0, that is 10. 0 and 1 carry. Then 2 plus 4, 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 1 carry, that is 8. And here is 1. So the three angle sum B is equals to 180 डिग्री. इसका सम हमारा कितना आ रहा है? 180 डिग्री. And 180 degree is equals to 180 degree. It means the triangle is possible. You see? Here the triangle is possible. Why the triangle is possible? Because if we add the given three angles, then the sum is 180 degree. And you know the angle sum property, that is angle A plus angle B plus angle C, that is equals to 180 degree. In
एंगल्स का जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और हमने यहीं पे यही चीज़ देखी कि जब हमने तीनों एंगल्स गिवन था उनको जब हमने सम किया तो वो किसके इक्वल आया, 180 डिग्री के। इट मीन्स दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। इन ए पार्ट you see when you add these three angles that the sum is not equals to 180 degree, it means the triangle is not possible. Now you see the C part, that is 55 degree, 89 degree and 38 degree. Again you add these three, that is angle A plus angle B plus angle C, that is equals to 180 degree or not. हम इन तीनों को प्लस करके देखेंगे. Now we write 55 degree plus 89 degree plus 38 degree, and then we add, that is 9 plus 8, that is 17. 17 plus 5, that is 22. 2 carry. Now 8 plus 3, that is 11. 11 plus 5, that is 16. 16 plus 2 carry, that is 18. And here is 182, that is not equals to 180. हमारा ये जो थ्री एंगल्स का सम था वो मोर देन 180 डिग्री आया. इट मीन्स द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है. इफ द थ्री एंगल सम is more than less than 180 degree, then the triangle is not possible. If the sum is equals to 180 degree, then only the triangle is possible. Now all of you understand it, and the remaining part you solve as homework. Now student, that is the question number 5. You see carefully and try to understand it. That is question number 5. Find the missing angle in each triangle. You have to find out the missing triangle. Missing angle. ये ट्रायंगल गिवन है. इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं. थर्ड वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है. ये मिसिंग है. इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मेथड मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट यू सी, यू नो द एंगल सम प्रॉपर्टी. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मीन्स तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री. हमें यहाँ जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स गिवन है, दैट इज ए बी सी, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है. XYZ भी आ सकता है, LMN भी आ सकता है. तो जो भी अल्फ़ाबेट गिवन हो वो हम यहाँ पर लिखेंगे. क्लियर? नाउ यू सी द 2 एंगल्स आर गिवन, दैट इज एंगल A and angle B. Angle A is 90 degree, so you write here 90 degree. Angle B is 40 degree, so you write here 40 degree. And angle C, that angle is missing, so you write it as this. And then you write it 180 degree. This is important, so students please see carefully and try to understand. इसको समझने की कोशिश करिए क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल गिवन था बेटा, फिगर गिवन है, उसमें थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज द मिसिंग एंगल यू शुड फाइंड आउट. सो फर्स्ट यू राइट द एंगल सम प्रॉपर्टी, देन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू वॉट एवर द वैल्यूज इज गिवन. जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुटअप कर देंगे. तो उसकी जगह हमने यहाँ वैल्यू रख दी. अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे. मीन्स कि 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री. इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा क्या आया, 130 डिग्री. अब देन वी राइट एंगल्स. स्टेप बाय स्टेप यू अंडरस्टैंड. आपको बिल्कुल ऐसे ही स्टेप लिख के सॉल्व करना है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए. अब आपने देखा कि हमें क्या निकालना है, एंगल सी. तो हमने
ये नंबर किसमें है, प्लस में है। जब हमने आपको पहले बता रखा है, अगर किसी नंबर के आगे जब कोई प्लस और माइनस नहीं लग रहा होता है तो वो वाला नंबर प्लस माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, मतलब वो नंबर प्लस में है। अब जब ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो इससे रिवर्स साइन में हो जाएगा, अपोजिट साइन आ जाता है। अगर यहाँ पे प्लस में है तो वहाँ जाके ये माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ये माइनस में होता तो उधर जाके ये प्लस में हो जाता, मतलब इससे अपोजिट साइन लगता है। जब भी हम इक्वल्स टू के बाद इधर डिजिट लेकर आते हैं तो उससे अपोजिट साइन हमें यहाँ लगाना होता है। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इट। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 माइनस 0 दैट इज 0, 8 माइनस 3 दैट इज 5 एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो एंगल C कम्स 50 डिग्री। हमारा एंगल C कितने डिग्री का आ गया, दैट इज 50 डिग्री। तो अब आपने देखा कि हमारा ये मिसिंग एंगल आ गया। अब हम तीनों को प्लस कर सकते हैं। 90 प्लस 40 कितना था हमारा, 130 डिग्री, और 130 डिग्री में अगर हमने 50 डिग्री को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा इसका सम तीनों एंगल का, 180 डिग्री। दैट इज पॉसिबल। तो आपको मिसिंग एंगल कैलकुलेट करना था। अगेन आई एक्सप्लेन हाउ यू कैलकुलेट द मिसिंग एंगल। सबसे पहले हमने क्या लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखी, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो भी एंगल गिवन था उसको हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट इज 90 प्लस 40 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 130 डिग्री आ गया, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल C फाइंड आउट करना है, तो हमने 180 डिग्री माइनस यहाँ पे जो भी साइन होता है उससे अपोजिट साइन आता है यहाँ पे, तो ये प्लस में था, वहाँ गया तो हमारा ये माइनस में आ गया। तो हमारा क्या हो गया, एंगल C की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दैट इज 50 डिग्री। इन दिस वे वी कैन सॉल्व and find out the missing angle. Now you see the next part. अब इसी का हम B पार्ट देखेंगे, जो हमारा इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है। ये इस तरीके से ट्रायंगल हमें बना के गिवन है और इसमें वैल्यूज है 30 और 105 डिग्री, और इस ट्रायंगल का नेम है PQR, that is P, Q and R. Now you find out this angle, that is angle P. Now how you calculate it? First you write the angle sum property, and you know the angle sum property, that is angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था कि जो तीनों एंगल्स, हमें जो ट्रायंगल्स में नेमिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम एंगल सम प्रॉपर्टी में नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार एंगल A एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखें, क्योंकि हमें यहाँ पे PQR मेंशन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल P पे कोई वैल्यू नहीं गिवन है, एंगल Q पे कितना डिग्री गिवन है, 105 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 105 डिग्री। अब एंगल R में कितना डिग्री गिवन है, 30 डिग्री, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एंगल P, अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 5 3 1 135 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमने क्या किया, एंगल P 180 डिग्री, अब ये यहाँ पे प्लस में था, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस, इसका अपोजिट साइन लगाएंगे हम। क्लियर? सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखिए 0 माइनस 5,
0 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो बोरो करेंगे, तो 10 minus 5 that is 5, 7 minus 3 that is 4, 1 minus 1 0. Our answer comes that is 45 degree. P कितना आ गया हमारा 45 डिग्री. अब आप चेक करेंगे कि आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो आप देखेंगे 105 प्लस 30 डिग्री कितना था हमारा 135 डिग्री. 135 डिग्री में हम 45 डिग्री को प्लस कर देंगे, जो हमारा P आया, तो कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री. इट मीन्स दिस इज पॉसिबल, सो आवर आंसर इज करेक्ट. इन दिस वे if any भी angle is missing, then we can find out that angle by this method. Now I explain you sixth question. I read the question from the books, that is in triangle ABC, angle A is equals to 72 degree. Angle A is given, that is 72 degree, and angle B is 68 degree. Angle B is 68 degree, and then the angle and find angle C. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल C फाइंड आउट करना है. तो एंगल C फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, बिकॉज यू नो द एंगल सम प्रॉपर्टी. So first you write the angle sum property, that is angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. ये वैसे ही है जैसे फिगर में हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें इस तरीके से गिवन है. नाउ यू सी एंगल A is 72 degree, एंगल B is 68 degree and angle C is equals to 180 degree. अब हमें क्या करना है, एंगल C फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल C की वैल्यू, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 7 13 प्लस 1 दैट इज 140. तो 140 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब एंगल C की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 180 यहाँ 140 प्लस में है, तो इधर जाएगा तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, दैट इज माइनस 140 डिग्री. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 40 डिग्री. अब ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या सम था 140 और इसमें 40 डिग्री ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा हाउ वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल. तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी. चाहे हमें एंगल ए फाइंड आउट करें, बाकी के दो एंगल गिवन हो तो भी ऐसे ही करेंगे. चाहे एंगल बी फाइंड आउट करना हो, एंगल ए और सी दे रखा है तो भी हम ऐसे ही करेंगे. पहले जो भी टू गिवन एंगल्स दे रखे हैं उन दोनों को पहले प्लस कर देंगे और फिर उसको 180 में से हम उसे माइनस कर देंगे. इस तरीके से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर देंगे. नाउ द 7th 8th 9th द रिमेनिंग क्वेश्चन एज योर होमवर्क, ट्राई it, and if any doubt then you may ask me.